So we're talking about the question on disease, patient and disease. And we already seen that we see doctor from the first house, medicine from fourth house, disease we see from sixth house, seventh house, as well as 11th house, because this is the sixth house and sixth from the sixth is 11th house. Then death we see from eighth house as well as the third house. And this we already seen that if Lagna is the benefic, then doctor will be able to cure the patient. If Lagna is malefic, then you need to change the doctor. 10th house is benefic, then diagnosis or treatment is correct. Then 4th house is benefic, then medicine will cure the patient. 4th house is malefic, it means you need to change the medicine. Medicine may not be able to cure the patient. 6th and 7th houses, the benefic means the patient will be cured by taking medicine. And if 6th and 7th houses, which are the house of disease, are malefic, then patient may not be able to recover. Then we also said that if Lagna and Lagna Lord, they are in a movable sign, that is 1, 4, 7, 10, then patient needs change of doctor. Then 6th and 7th houses, they make Itsal with 8th Lord. Either Lord of 6th or 7th houses, they are making Itsal with 8th Lord. 8th Lord is the house of death, and 6th and 7th houses are the house of disease. So naturally, if house of disease are making Itsal with the house of death, then naturally there are chances of death of the patient. Then if moon is in the Upachaya Sthan, benefics are in Kendra Trikon or in the 8th house, then the patient will fully recover. Then Lagna and Lagna Lord, they are benefic and strong. Again, the patient will get cured. Moon is in the own sign and is making Itsal with the benefic planet. Then also the patient will get cured. Now we'll take some these principles which indicate delay in recovery or which may lead to death also. They say that if Lagna and Arud Lagna, we already seen what is Arud Lagna. So if Lagna and Arud Lagna, both are malefic, both are afflicted with a malefic planet, then it may result in the death of the native, death of the patient actually. If malefics are in the 10th house, then also it results into the death of the patient. Saturn associated with the 8th house. Naturally, Saturn doesn't kill a person, but it gives a long illness, because many people who are affected by Saturn in the 8th house, they may have a long life, but the life is not very comfortable, because the basic nature of the Saturn is to adversely affect your mobility. So if Saturn is associated with the 8th house, you may have a long illness, but there is no possibility of death. Janma Rashi is in the 8th house. Janma Rashi means ki in the natal chart, the Rashi of the moon or your moon Rashi, if it is placed in the 8th house at the time of making the chart, and if it is afflicted with a malefic planet, then also it may result into the death of the native. Then exchange of lords of 6th and 8th houses. Again, the houses of disease as well as the house of death. So if there is an exchange between these two houses, then also that indicate the delay or even the death actually. Moon in the Mool Trikon sign and the Lord is retrograde. The sign in which moon is placed, its Lord is retrograde, and if moon is in the Mool Trikon sign. Then exchange of Lagna and the Lord of 6th house. They also indicate delay or even the death. Retrograde planets in the 4th or 7th house, they also indicate delay. Then Lagna in the Prastodeya sign, malefic in the Kendra, and moon in the 8th house. So they mean death. And what are these Prastodeya, Ubhayodaya, and Sirshodaya signs? I think we already learned in the first class. The Prastodeya sign means the signs which are rising from the back part actually. So these are Aries, Taurus, Cancer, Sagittarius, and Capricorn. Sirshodaya means which rising with the head actually. So these are Gemini, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, and Aquarius. And Ubhayodaya means which can rise both ways. So that is the Pisces sign. So naturally, if
at any time when we make the chart, if Shirshodaya sign is rising, naturally it indicates success. Shirshodaya sign always indicates success. And Prastyodaya sign, they indicate failure. And if Ubhyodaya sign is rising, then there is a possibility of both. You may get the mixed result or success with hurdles and problems. So it means Lagan sign. Lagan sign. This is the Lagna sign. Okay. So now let's say this case, some female comes and she asks about her husband. Well, my husband will recover. So you make the chart is this chart. Now she's asking about her husband. It means this, we have to consider this house as the Lagna house, first house. Seventh house will become the first house. Now you see the position of this, this considering this as a first house. So what is the position here? If you see the position of Lagna, so what is the position of Lagna? Is aspected by Mars as well as retrograde Jupiter. If you see its Lord, then Lord is Mercury. Mercury is afflicted with Sun, Saturn, and it is an aspect of Ketu also. It's an aspect of Ketu also. So Mercury is badly afflicted. And even if you see the position of Moon, Moon is here and it is afflicted with Ketu. Moon is afflicted with Ketu. Rahu to automatically aa jata hai. When this Ketu is there, so we don't consider the aspect of Rahu because Rahu and Ketu are same. So what we find here that Lagna, Lagna Lord, and basically Moon, they are weak or afflicted in this horoscope. And when this such type of situation is there, when the Lagna is weak, Lagna Lord is weak, the Moon is weak, then we need not to see any other thing because that itself indicates answer in negative. And but even if you see the fourth house here, this fourth house is badly afflicted. Fourth house is what? Medicine. So this is badly afflicted fourth house. And even if you see this 10th house is what? Patient. 10th house is the patient. So this 10th house, if you see, it is an association of Sun, Saturn, Rahu, all three, and Mars also. So Sun, Saturn, Mars, and Rahu, this 10th house. So this 10th house is badly afflicted. So that also indicate death of the native. Because even if you see the 6th house here, 6th house is this one. This is again afflicted with Rahu and Saturn is having an aspect on this. So naturally, कोई भी house जो है वो ऐसा नहीं है which indicates a positive answer. So all these things, they naturally they indicate death of the native. So we can answer like that in case such question comes, because neither the 4th house nor the 10th house nor the Lagna nor the Moon is strong. So naturally there are no chances of survival. सर ऐसे केस में if somebody comes और हमें ये सिचुएशन दिख रही है, अब हम अपफ्रंट तो ऐसे नहीं बोल सकते ना उनको, तो किस तरह से हमें बोलना चाहिए? कोई भी आपको आएगा तो नेचुरली ही विल टेल यू व्हाट इज द प्रॉब्लम. अगर ऑलरेडी बहुत सीरियस आदमी है और ऐसे केस में आपके पास आता है तो नेचुरली यू कैन से ही विल नॉट सर्वाइव, बट इन केस यू सी देन यू कैन टेल हिम कि इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, रिकवरी में बी डिलेड. इस टाइप से आप बोल सकते हो कि आसानी से रिकवरी नहीं होगी, पोजीशन इज बैड. बट नेचुरली अगर सर फिर भी वो बार बार इंसिस्ट करते हैं कि बच तो जाएंगे ना, बिकॉज प्रैक्टिकली ऐसा ही करते हैं, पूछते हैं लोग कि बच तो जाएंगे ना, आपको क्या लगता है, तो फिर क्या बोलना चाहिए? हाँ, तो आपको वो सारी चीजें देखनी पड़ेंगी. जैसे मान लीजिए कोई बहुत यंग आदमी और बहुत सीरियस नहीं है तो चांसेस हैं, बट एटलीस्ट यू कैन से कि इट्स गोइंग टू बी कॉम्प्लिकेटेड, इट मे टेक टाइम, इट विल डिले रिकवरी, आसानी से नहीं होगी, या आप अच्छा इलाज कराइए, ठीक से इलाज कराइए. बट ऐसा कोई बहुत सीरियस केस है जो ऑलरेडी वेंटिलेटर पर है या ऑलरेडी आईसीयू में है और आप जानते हैं कि ऐसे केसेस में बचना थोड़ा मुश्किल होता है, देन स्ट्रेट अवे यू कैन आंसर.
आप कोई पूछने आता है कि मैं सर्वाइव होऊंगा या डेथ होगी, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कहते डेथ में, अनलेस एंड अनटिल वी आर वेरी सर्टेन। एक्चुअली कोई ऐसी चीज है जहां बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है, तो उस केस में तो हम कह सकते हैं, बट naturally such type of thing we never say like death. We can only say कि it's going to get more complicated, so we have to be more careful. So अभी इस वाले एग्जांपल में that we have seen कि Jupiter is retrograde and aspect on the Lagna. So अगर Jupiter retrograde नहीं होता तो would have changed some situation. नहीं, देखिए फिर भी डॉक्टर है फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस इज द डॉक्टर, डॉक्टर में भी ओके, बट आपने अभी देखा 4th हाउस 10th हाउस और बाकी मून वगैरह बहुत वीक है, तो नेचुरली फिर रिकवरी का सवाल नहीं आता। आप तो फर्स्ट हाउस से तो आप डॉक्टर ही तो देखते हैं और क्या देखते हैं। ओके सर। सर इन केसेस में हम कुछ रेमेडीज रेकमेंड कर सकते हैं, कुछ वर्क करती हैं? हाँ, नेचुरली अगर आप देख रहे हैं कि अफ्लिक्शन किसकी वजह से है, तो उस टाइम आप डेफिनेटली उस प्लैनेट की रेमेडी रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे मरकरी आप देख रहे हैं बहुत ज्यादा अफ्लिक्टेड है यहाँ पर, राइट, तो उसकी रेमेडी आप कर सकते हैं उस टाइम जो है। सर हम ये भी कह सकते हैं कि डॉक्टर चेंज करके देख लीजिए। नहीं, डॉक्टर तो ठीक है, उसको जुपिटर का एस्पेक्ट हो रहा है फर्स्ट हाउस के ऊपर, तो ट्रीटमेंट इज ओके, बट जो सिचुएशन है सर्वाइवल इज डिफिकल्ट। बट ऐसे केस जब भी पूछेंगे जब नेचुरली इज अंडर लॉट ऑफ सीरियस प्रॉब्लम, उसी की बात हो रही है। ऐसे नहीं कोई बच्चा आया और कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम नहीं है और आपने ऐसा देखा, तो यू कैन नॉट से डेथ। एक्चुअली वो थोड़ा सा आपको भी अपना जो थोड़ा प्रूडेंस अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक, नाउ द क्वेश्चंस कनेक्टेड विद द प्रोजेनी, ये भी लोग बहुत पूछते हैं कि पहली चीज तो यह है कि संतान होगी या नहीं होगी, सेकंड मेल बर्थ होगा या फीमेल बर्थ होगा, थर्ड ये भी पूछते हैं कि वेदर दिस प्रेगनेंसी विल बी कैरिड ऑन, कोई मिसकैरेज वगैरह का चांसेस तो नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं प्रोजेनी से संबंधित जो है। तो ये कहते हैं कि अगर बेनिफिक प्लैनेट लग्न में और 5th हाउस में होते हैं एट द टाइम ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, then the person may already be pregnant at that time. अगर benefic planet लग्न में है और 5th house में है, तो that indicate that that pregnancy is already there. Then second, ये देखिए लग्न सन मून जुपिटर, लग्न सन मून और जुपिटर, इसमें से अगर ज्यादातर प्लैनेट ऑड साइन में है, इनमें से अगर ज्यादातर प्लैनेट ऑड साइन में है, तो दे इंडिकेट मेल बर्थ ऑफ ए मेल चाइल्ड। और यही प्लैनेट अगर इवन साइन में है, तो नेचुरली इट इंडिकेट द बर्थ ऑफ ए फीमेल। तो ये भी जो प्लैनेट की पोजीशन है वो ऑड साइन में है या इवन साइन में है, उनको देखकर आप बता सकते हैं कि मेल बर्थ की पॉसिबिलिटी है या फीमेल बर्थ की पॉसिबिलिटी है। एक और है कि अगर सैटर्न इन ऑड प्लेस फ्रॉम द असेंडेंट, it means if the Saturn is in the 3rd, 5th, 7th, 9th or 11th house, Saturn in 3rd, 5th, 7th, 9th and 11th house, then also it indicates the possibility of a male birth. तो ये देखकर आप लग्न की और 5th हाउस की पोजीशन को हम बता सकते हैं कि प्रोजेनी के चांसेस हैं या नहीं है। और अगर ऑलरेडी आप देखते हैं कि लग्न और 5th हाउस, सर जैसे ये फर्स्ट, हाँ जी, हेलो सर, जैसे ये फर्स्ट वाली जो कंडीशन है लग्ना सन मून जुपिटर, if these are in odd signs and male birth, so if we find these all are in odd signs, then we predict that male birth. But जैसे Saturn है, is ये this is in this is not in odd sign। यहाँ काम ने odd place में कहा, साइन की बात नहीं हो रही है। हाँ, odd place, sorry, odd place में नहीं इसका है। मतलब जो है कि Saturn is in the 3rd house, 5th house, 7th house और 9th house और 11th house। हाँ, तो odd houses में नहीं है। हाँ, और बट वो वाली चीजें हैं, तो फिर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं हो जाएगा? नहीं, बट दिस इटसेल्फ, बिकॉज अगर देखिए सारे के सारे ना तो ऑड में होंगे ना इवन में होंगे, ये पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि हम चेक करने के लिए, दिस इज वन ऑफ द मेथड ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ द हॉरोस्कोप आल्सो, कभी टाइम सही नहीं होता, तो कहा जाता है कि ये जो कोई भी अगर मेल हॉरोस्कोप होगा तो उसमें ये प्लैनेट सारे के सारे ऑड साइन में होने चाहिए, ज्यादा मतलब इसमें से ऑड साइन में होने चाहिए। ऐसी फीमेल के हॉरोस्कोप में ये ज्यादातर
फीमेल ये इवन साइन में होने चाहिए। तो इससे हम लोग जो रेक्टिफिकेशन ऑफ बर्थ टाइम है वो भी करते हैं, क्योंकि मेल के लिए पर्टिकुलरली दिस प्लैनेट शुड बी इन द ऑड साइन एंड फीमेल के लिए प्लैनेट शुड बी इन द इवन साइन। तो सारे के सारे तो नहीं होंगे, बट इसमें से अगर 3 भी हैं मान लीजिए, तो देन यू आर वेरी श्योर कि मेल ही होगा, या अगर 3 इसमें इवन में है तो फीमेल होगा। बट दिस इज एन एडिशनल कंडीशन कि अगर शनि अगर इस प्लेस में है तो दैट आल्सो मे रिजल्ट इन द मेल चाइल्ड। देखिए एक ही कॉम्बिनेशन नहीं होता किसी भी चीज का। तो सर ये वाली कंडीशन मेल के चार्ट में रहेगी, फीमेल के चार्ट में? जो भी पूछने आ रहा है आपसे, ओके, जो भी पूछने आ रहा है, दिस इज ए थ्योरी नॉट ए चार्ट एक्चुअली। फिर तो ऊपर वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग मान लो फीमेल बर्थ दिख रहा है बट सैटर्न ओड प्लेस में है, तो फिर हम क्या बोलेंगे? कैसे? जैसे लगन, सन, मून, जुपिटर, मोस्ट ऑफ दीज आर इन द इवन साइंस, हाँ, then female birth we can predict, but if Saturn additionally a Saturn in odd place, this is what I'm saying, this is more certain। अगर वैसे भी किसी भी आप मेल या फीमेल का हॉरोस्कोप देखेंगे तो उसमें भी आप यही देखेंगे कि ये सारे ज्यादातर मेल होगा तो ऑड साइन में होंगे, फीमेल होगा तो ये इवन साइन में होंगे। तो दिस इज मोर श्योर एंड सर्टेन कंडीशन। अगर आपको लगता है कि चारों के चारों अगर मेल में ही है तो आप डेफिनेटली आप, या फीमेल में है तो फीमेल ही कहेंगे आप, फिर सर्टेन को नहीं कहेंगे, बिकॉज दिस इज मोर ऑथेंटिक। मेल के हॉरोस्कोप में ये सारे ऑड साइन में ही होते हैं। अगर आप अपना भी हॉरोस्कोप देखेंगे तो मेल है तो ये ऑड में होंगे, अगर फीमेल है तो इवन साइन में होंगे। ठीक, मतलब कंडीशन 1 में अगर मैच कर जाए तो और सेकंड वाला कंडीशन सैटर्न वाला नहीं देखेंगे? हाँ, फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि दिस इज मोर ऑथेंटिक। मतलब अगर उधर नहीं होता तब सैटर्न वाला कंडीशन? बिल्कुल। मान लीजिए कि इससे आपको कोई कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर पाते, आप कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर पाते, 2 ऑड में है 2 इवन में, आप क्या करोगे? एंड along with that you find this also। तो फिर आपने इसकी हेल्प भी ले ली आपको, तो आप और कंक्लूसिवली जो कोई भी इन्फ्रेंस ड्रॉ कर सकते हैं आप उसमें जो है। तो हमको सबको यूज करना है। देखिए एक कंडीशन कोई ऐसा नहीं है कि एक चीज को देख के हम कुछ वाटर टाइट कंपार्टमेंट है कि इसको हम डिसीजन ले लेंगे। We may have to see number of things because it will never happen that all the 4 are either odd or even sign। मान लीजिए 2 और 2 हो गए, ये 2 ऑड में है 2 इवन में, तो आप क्या करोगे? We need additional help। हाँ, we need additional help, then this may help you। इस तरह से मतलब एक चीज नहीं, खाली एक चीज के ऊपर आप डिपेंड नहीं कर सकते, और एक चीज तो कभी होगा भी नहीं कि हम कहें कि चारों के चारों ऑड में आएंगे या चारों इवन में आएंगे, वो कभी नहीं आएंगे। फिर क्वेश्चन ये है कि कोई मिसकैरेज तो नहीं होगा या कोई अबॉर्शन तो नहीं होगा, तो उसको देखने के लिए भी मैनी टाइम्स द पीपल विल कम कि ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं बट बताना चाहते हैं कि ठीक ठाक सब कुछ हो जाएगा या नहीं हो जाएगा। तो उसके भी कुछ कॉम्बिनेशन है मिसकैरेज के। जैसे अगर लॉर्ड ऑफ 12th हाउस इज इन द केंद्र, कोई भी अगर उस टाइम अपने चार्ट बनाया और उस टाइम जो 12th हाउस का लॉर्ड केंद्र में प्लेस्ड है। लग्न इन 5th हाउस एसोसिएटेड विद द मैलेफिक प्लैनेट, नेचुरली अगर लग्न और 5th हाउस का एसोसिएशन मैलेफिक के साथ होगा तभी भी। 5th लॉर्ड इन द त्रिक हाउस विद द मैलेफिक प्लैनेट, 5th हाउस का लॉर्ड जो है वो त्रिक हाउस में प्लेस्ड है विद द मैलेफिक प्लैनेट। Mars in the 8th house, that also is a indication for miscarriage. Ascendant and 5th lord associated with the malefic and are retrograde। वही हो गया कि ascendant और 5th house के lord malefic हैं, और अगर retrograde भी हैं तो और ज्यादा possibility बन जाती है miscarriage की। अनिल जी, ये सब कुछ 5th हाउस से देखना पड़ेगा, 5th हाउस को लग्न मान के नहीं। किसमें? We are asking about progeny। हाँ, प्रोजेनी मतलब जैसे कोई फीमेल आती है आपके पास, 5th हाउस से ये वाले हाउस काउंट करने पड़ेंगे क्या? कौन से हाउस? नहीं, 5th हाउस अगर कोई अपने बारे में पूछ रहा है, मान लो फीमेल आती है आपके पास कोई भी और वो पूछती है कि प्रेगनेंसी पॉसिबल है या नहीं है, ओके, तब ठीक। या मेल आता है तो अपनी वाइफ के बारे में पूछ रहा है तो नेचुरली, या मेल ये भी पूछ सकता है कि मैं मेरे फैमिली में होने वाला है बच्चा, मेल होगा या फीमेल होगा, तो देन यू हैव टू सी हिज हॉरोस्कोप ओनली। हाँ, जब कोई दूसरे के बारे में पूछता है जब हम हाउस को चेंज करते हैं।
यहाँ देखिए कोई पूछ रहा है आपसे कि मेल होगा या फीमेल होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। तो इसमें आपको दोनों चीजें देखनी है, एक तो लग्न देखना है और 5th हाउस देखना है। लग्न भी देखना है, 5th हाउस भी देखना है। लग्न की जहां तक पोजीशन है, इसका लॉर्ड एक्सॉल्टेड है, यहाँ पर बैठा हुआ है, तो this position is good actually. Lord of Lagna in the 10th house in exaltation is good position. और दूसरा अगर आप 5th हाउस को देखिए, 5th हाउस की क्या पोजीशन है, जुपिटर है यहाँ पर, मेल साइन है, 5th नंबर इज अ मेल साइन। और कौन कौन से प्लैनेट इसको देख रहे हैं, सन देख रहा है, सन इज अ मेल प्लैनेट, मार्स देख रहा है, मार्स इज आल्सो ए मेल प्लैनेट, वीनस भी देख रहा है, बट वीनस जो है वो उसकी जो डिग्री है वो 2 डिग्री है। वीनस इज ए वीक प्लैनेट इन दिस केस, बट when we see this we find that most of this 5th house is aspected by most of the male planets only. जो राहु भी देख रहा है, राहु देख रहा है, राहु देख रहा है। हाँ, राहु को हम कंसिडर करें तो वो भी 9th साइन में है, वो भी एक ऑड साइन में है, तो वो भी जो रिजल्ट देगा वो जुपिटर का ही देगा, जुपिटर की रिजल्ट देगा राहु भी यहाँ पर, क्योंकि राहु जो है इसका लॉर्ड भी जुपिटर है और जुपिटर इसको एस्पेक्ट भी कर रहा है और 9th साइन में ही है। तो सारे के सारे जो एस्पेक्ट हैं वो मेल प्लैनेट के ही हैं या मेल साइन के हैं, तो नेचुरली फिर ऐसे केस में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ ए मेल चाइल्ड ओनली। ठीक, अब इसमें देखिए, now question is कि that pregnancy is already there, so she is asking whether there is any possibility of miscarriage or abortion. तो वही हमें लग्न और 5th हाउस देखने हैं, जैसे हम लोग कर ही रहे हैं कि लग्न भी देखना है हमें और 5th हाउस को भी देखना है, उन्हीं दोनों से पता लगेगा। तो अगर लग्न की पोजीशन देखें तो क्या है यहाँ पर, और लग्न लॉर्ड 12th हाउस, लॉर्ड 12th हाउस में। लग्न के ऊपर कोई एस्पेक्ट है किसी प्लैनेट का? नहीं, नहीं है ना, कोई ना बेनिफिक या मैलेफिक कोई एस्पेक्ट नहीं है। दूसरा जो लग्न लॉर्ड यहाँ चला गया 12th हाउस में जी, इसकी जो एसोसिएशन है, एक तो सन के साथ है और राहु भी देख रहा है और साथ में जुपिटर भी देख रहा है, राहु भी देख रहा है और जुपिटर भी देख रहा है। ठीक है, 5th हाउस की पोजीशन देखिए क्या है, मार्स और मरकरी की एस्पेक्ट है, मार्स का एस्पेक्ट, मरकरी तो उधर शिफ्ट हो गया, इधर है मरकरी एक्चुअली में, तो इसके ऊपर एस्पेक्ट किसका है? नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, इसका जो लॉर्ड है मरकरी एंड मार्स दे आर टुगेदर एक्चुअली यहाँ पर, तो इस पे अगर आप देखेंगे कि जो लॉर्ड है मरकरी, इट इज एफ्लिक्टेड विद मार्स एज वेल एज सैटर्न, दोनों से एफ्लिक्टेड है ये। तो दोनों की पोजीशन, ना तो लग्न की पोजीशन ना ही 5th हाउस की पोजीशन जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर, रादर 5th हाउस जो हम देखते हैं बेसिकली प्रेगनेंसी के लिए वो वीक है काफी, क्योंकि इसका जो लॉर्ड है वो दोनों से एफ्लिक्टेड है विद मार्स एंड सैटर्न। तो उस केस में, मतलब ऐसे केसेस में जो पॉसिबिलिटी ऑफ मिसकैरेज इंक्रीजेस, तो कह सकते हैं कि चांसेस हैं मिसकैरेज के ऐसे पर्टिकुलर केस में जो है, क्योंकि लग्न भी किसी तरह से स्ट्रांग नहीं बनता। लग्न को भी अगर हम देखें तो करीब करीब सभी मेलेफिक प्लैनेट का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी है लग्न का, लग्न के ऊपर जो है। नो मैरिज, मैरिज के बारे में भी आप देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। पहले तो मैरिज होगी या नहीं होगी या कब होगी, दूसरा जब मैरिज होने के बाद नाउ क्वेश्चन कम्स की सेपरेशन डाइवोर्स की बात आती है। फिर मैरिज से पहले ये भी आता है कि लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी। और 4th टाइप के क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि ऑलरेडी जो प्रोसीडिंग चल रही है कोर्ट में उसका क्या डिसीजन होगा। और एक ये भी होता है कि आजकल पर्टिकुलरली मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे केसेस में वाइफ चली जाती है घर छोड़कर, इट्स हैपनिंग इन लॉट ऑफ केसेस एंड शी डजंट कम फॉर ए लॉन्ग टाइम।
तो मोस्ट ऑफ द पीपल दे कम कि वेदर देयर इज एनी पॉसिबिलिटी ऑफ हर कमिंग बैक। तो ये भी एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं कि वाइफ जो है वो चली गई है और वो वापस आएगी या नहीं आएगी। तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, तो उनका हम जवाब जो है वो कैसे देंगे। तो उसमें कहा कि जो जहां तक पहले हम मैरिज की बात करते हैं कि मैरिज की संभावना है या नहीं है, या प्रॉमिस ऑफ मैरिज हम कहेंगे, तो कहते हैं कि अगर मेल क्वेरी करता है, मेल अगर क्वेरी करता है, तो उस टाइम अगर सैटर्न इन इवन हाउस फ्रॉम असेंडेंट, सैटर्न अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12 हाउसेस में होता है तो इट इंडिकेट्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। और अगर क्वेरी फीमेल की होती है और उस टाइम अगर सैटर्न ऑड हाउस में है 3, 5, 7, 9, 11 में, तब जो है दैट इंडिकेट्स द प्रॉमिस ऑफ मैरिज। सर एक क्वेश्चन है कि मान लीजिए मेल के लिए, जैसे बेटे के लिए माँ पूछ रही है, तो वो मेल की कैटेगरी में आएगा ना? नहीं, देखिए क्वेश्चन अगर आप बेटे के लिए पूछ रहे हैं आप जी, तो पहले तो 5th हाउस को असेंडेंट मानेंगे जी। तो 5th हाउस को असेंडेंट मानकर उसको फिर आप देखेंगे सैटर्न की पोजीशन। तो उसमें यही चलेगा, सैटर्न इन इवन हाउस फ्रॉम असेंडेंट मेल वाले? हाँ, दिस प्रिंसिपल विल रिमेन द सेम। Only thing is कि you have to change the ascendant. Ascendant, in case you are asking about your son or daughter, then you have to consider 5th house as ascendant. तो query from male, but if lady is asking for son, तो उसमें हम query from male ही consider करेंगे? नहीं, ये बात हो रही है अपने बारे में पूछ रहा है। अगर नेचुरली अंडरस्टूड है कि अगर ये अपने बारे में है तो सीधा हम असेंडेंट को मान लेंगे, अगर किसी और के बारे में है तो असेंडेंट आप चेंज करके देख लीजिए, प्रिंसिपल तो यही रहेगा सेम। नहीं सर, असेंडेंट चेंज कर लिया, बट जिस क्वेरी, अच्छा वो खुद ने पूछा तो हम ऐसे कंसीडर कर रहे हैं मेल और फीमेल। मदर भी आती है, वो अपने बेटे के बारे में पूछती है, तो दिस इज क्वेश्चन इज अबाउट मेल। ओके ओके। अगर डॉटर के बारे में पूछती है तो क्वेश्चन इज अबाउट फीमेल। गॉट। अनिल जी एक और केस बताइए। एक आपका कोई फ्रेंड है, वो अपने फ्रेंड के बारे में पूछ रहा है, अब बताइए क्या होगा? फ्रेंड हम किस हाउस से देखते हैं? 11th हाउस। 11th हाउस सर? 11th, 3rd हाउस। वैसे तो 3rd या 11th देखते हैं। 3rd इज नेबर्स। देखिए फ्रेंड हम नॉर्मली 5th हाउस से देखते हैं, और जैसे एनिमी हम देखते हैं 6th हाउस से, और फ्रेंड हम देखते हैं 5th हाउस से। और दो तरह के एनिमी होते हैं, दो तरह के फ्रेंड होते हैं, एक ओपन फ्रेंड, एक सीक्रेट फ्रेंड। एक ओपन एनिमी, एक सीक्रेट एनिमी, राइट। ओपन एनिमी तो आपको पता है कि मेरा दुश्मन है, और सीक्रेट एनिमी आपको लग रहा है कि बहुत मेरा हेल्पर है या मेरा मतलब साथ में है, लेकिन वो आपको दुश्मन ही कर रहा है, तो वो सीक्रेट एनिमी हो गया। ऐसे फ्रेंड होते हैं, कुछ पता है आपको कि ये मेरे फ्रेंड है, ये मेरी हेल्प करते ही हैं। और सीक्रेट फ्रेंड होते हैं कि कई बार आप देखिए कि मान लीजिए गवर्नमेंट में भी जाते हैं आप, तो 2 लोगों की फाइल जाती है एक ऑफिसर के पास, एक को वो साइन कर देता है, एक को अप्रूव कर देता है, एक को नहीं करता, उससे तो दोनों को देखा नहीं कुछ भी, तो उसको हम कहते हैं सीक्रेट फ्रेंड, कि वो सीक्रेटली कोई भी आदमी आपकी हेल्प करेगा या नहीं करेगा। तो दैट इज टू बी सीन फ्रॉम 11th हाउस। तो अगर क्वेश्चन फ्रेंड के बारे में भी है तो नेचुरली 5th हाउस को हमें असेंडेंट मानना पड़ेगा। ठीक राजेश जी। और सीक्रेट एनिमी को किससे देखते हैं अंकल? 12th हाउस से, उसके अपोजिट से। आई सी, ओके। तो अगर मान लीजिए 12th हाउस, देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि ये मुझे मेरे सब लोग अगेंस्ट में क्यों रहते हैं, जो मुझे लगता है कि बहुत मेरे सपोर्टर हैं, दे आर आल्सो अगेंस्ट मी, क्योंकि 12th हाउस आपका बहुत खराब होता है उस केस में जो है। तो आपको तो लगता है कि मेरे फ्रेंड हैं या मुझे हेल्पर हैं, लेकिन वो नुकसान पहुंचाते हैं आपको अगर 12th हाउस आपका स्ट्रांग होता है, मैलिफिक होता है अगर। और अगर 11th हाउस आपका बहुत बेनिफिक है तो आपके काम ऑटोमेटिक हो जाते हैं, आप कोई सोर्स भी नहीं लगाते, कोई एफर्ट्स भी नहीं करते, बट दूसरा आदमी आपका अप्रूव कर देता है या साइन कर देता है या एग्री हो जाता है। तो ये 5th हाउस वाला होरेरी में है कि फ्रेंड है, नॉट इन प्रेशर। नहीं, वैसे भी नॉर्मली हम उसको 5th हाउस को ही मानते हैं, जो प्रेशर में भी जो हमारे 3rd हाउस है, बेसिकली दिस इज द हाउस ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस हम 3rd हाउस से देखते हैं। ओके या
तो सर हम ओपन फ्रेंड के लिए 5th हाउस देखेंगे, 5th हाउस या और सीक्रेट फ्रेंड के लिए 11th हाउस। 11th हाउस, देखिए 5th हाउस आपका बहुत अच्छा है, तो यू हैव लॉट ऑफ गुड फ्रेंड्स एक्चुअली। और अगर तो मालूम है, सीक्रेट यू डू नॉट नो। हाँ, बट 11th हाउस अगर अच्छा है तो आपको अपने आप ही हेल्प मिलेगी। आप मान लो कोर्ट में जाते हैं, आपने कोई केस फाइल किया, अभी तो जज की मन मर्जी है कि आपको फेवर में करे या अगेंस्ट में करे, सर्कमस्टांसेस में भी सेम, एक को फेवर में करता है, एक को अगेंस्ट में करता है। तो अगर नेचुरली आपका अगर 11th हाउस स्ट्रांग है तो आपके फेवर में जाएगा। अब वीसा लेने गए मान लो यूएसए का, 2 आदमी जाते हैं तो विदाउट एनी रीजन राइम एक का रिजेक्ट हो जाता है, एक को एक्सेप्ट हो जाता है। तो 11th हाउस स्ट्रांग है तो नेचुरली आप मान के चलिए कि आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन 11th हाउस अगर वीक है, एफ्लिक्टेड है, तो फिर फेवर में डिसीजन नहीं होते, ऐसे अननोन आदमी आपके फेवर में डिसीजन नहीं करता। तो इसलिए सीक्रेट फ्रेंड होना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अदरवाइज आपको इस टाइप की हेल्प नहीं मिलती। मतलब 11th हाउस तो हमारे लिए मतलब बड़ा लक या अनलक प्रूव करता है। इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट हाउस, क्योंकि हमारा सारा गेन ही इसी, जो हमारी लाइफ का एम है, दैट एंटायरली डिपेंड्स ऑन 11th हाउस। यस, आपने लाइफ में क्या पाया जी। तो नेचुरली 11th हाउस अच्छा भी है तो नेचुरली आपको हेल्प भी मिलती है, सब जगह से अपने आप मिलती है, आपको कोई एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। अच्छा, फिर है कि exalted moon in the 7th or 10th house aspected by Venus or Jupiter, so that also indicates promise of marriage। यह कहा कि ascendant odd sign में है, Venus 7th house में है, and Jupiter in the 11th house. So there are various combinations which indicate promise of marriage. Jupiter in the movable sign in 1st or 7th house. Strong 7th lord and kendras devoid of malefic influence, मतलब लग्न strong है और ये केंद्र जो है they are devoid of malefic influence. Ascendant lord and 7th lord in own houses. Naturally both, जब ascendant भी है और marriage की हम बात कर रहे हैं तो 7th house दोनों अगर strong हैं, strong में भी कि अपने साइन में हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं या एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं और उनके ऊपर कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस भी नहीं है, तो नेचुरली दैट इज वेरी गुड इंडिकेशन फॉर प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो हमें दोनों ही हाउस को देखना है, लग्न को और 7th हाउस को। अब क्वेश्चन ये आता है कि अरेंज्ड मैरिज होगी या लव मैरिज होगी, वो हम कैसे देखेंगे, क्योंकि ये भी क्वेश्चन हमेशा लोग पूछते हैं कि अरेंज मैरिज होगी या लव मैरिज होगी। तो उसमें एक तो बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि मान लीजिए वीनस मार्स का कॉम्बिनेशन है तो दैट में आल्सो इंडिकेट अ पॉसिबिलिटी ऑफ लव मैरिज। दूसरा हम लोगों ने कहा था कि अगर 5th और 7th हाउस का एसोसिएशन होता है तो दैट में आल्सो लीड टू लव मैरिज। अब 5th हाउस को इट्स नथिंग टू डू विद द लव एक्चुअली, but 5th house is how you attract the opposite sex। ऐसा होता है कि जिसका 5th हाउस स्ट्रांग होता है तो उसकी तरफ अपोजिट सेक्स अपने आप अट्रैक्ट होता है। देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ लव, आप अपने किसी उसमें लव के एंगल में नहीं जा रहे, लेकिन अगर आपका 5th हाउस स्ट्रांग है तो आप देखेंगे कि अपोजिट सेक्स आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट होता है। तो वो अट्रैक्शन हुआ और उसका अगर संबंध 7th हाउस से हो गया कि इट मींस इट विल दैट अट्रैक्शन विल लीड टू द मैरिज, कि अट्रैक्शन हुआ अपोजिट सेक्स का और उसका क्योंकि संबंध 7th हाउस से हो गया तो इट इज लीडिंग टू अ लव मैरिज। कई बार ऐसा होता है कि जो 5th और 10th हाउस का संबंध हो रहा है तो इसका मतलब जो अट्रैक्शन हुआ दैट इज लिमिटेड टू द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर आपका रिलेशंस है या जो इस टाइप का अट्रैक्शन है, और अगर 5th और 10th हाउस का जो वर्क प्लेस पर अट्रैक्शन हुआ और साथ में 7th हाउस भी एसोसिएट हो गया उसके साथ, तो आप कह सकते हैं कि वर्क प्लेस पर अट्रैक्शन हुआ और दैट इज कन्वर्टेड इनटू मैरिज। तो उसकी भी पॉसिबिलिटी हो जाती है कि कई बार जो केसेस होते हैं कि वर्क प्लेस पर अट्रैक्शन हुआ एंड दैट इज लेड टू द मैरिज। तीसरी चीज ये है कि 8th हाउस, अगर 8th हाउस बहुत ज्यादा एफ्लिक्टेड होता है पर्टिकुलरली विद सैटर्न मार्स एंड राहु, तो भी हम कहते हैं कि जो मैरिज होती है वो इस तरह से होती है कि विच इज नॉट ए नॉर्मल मैरिज।
and that marriage is not acceptable to your family and the society. So naturally, it's a sort of love marriage only, because this is an odd combination which is possible only through the love marriage, not by the arranged marriage. तो अगर 8th हाउस में भी बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन होता है, particularly इन प्लैनेट का, सैटर्न, मार्स, राहु का, तभी भी जो है लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है, एंड दैट इज also an odd type of marriage, which is not a marriage which is acceptable to your family and the society. तो किसी भी तरह से इनमें से कोई भी अगर कंडीशन एप्लीकेबल है तो दैट में लीड टू द लव मैरिज एक्चुअली. तो नॉर्मली जो लोग बिलीव करते हैं कि हाँ जी बोलो. 8th हाउस में सैटर्न, मार्स, राहु आगे तो डाइवोर्स हो जाएगा. रहता डाइवोर्स भी होगा. एक तो देखिए दोनों चीजें हैं, एक तो मैरिज होगी विच इज ऑड कॉम्बिनेशन, और दूसरा ये है कि मैरिटल बॉन्ड वीक हो जाता है उस केस में, तो वो मैरिज चलती भी नहीं है, वो मैरिज चलेगी भी नहीं. आप इनका देखिए हॉरोस्कोप उठाकर, इंदिरा गांधी है, राजीव गांधी है, संजय गांधी है, तीनों का आप हॉरोस्कोप ले लीजिए, एंड देन यू सी दैट 8th हाउस इज बैडली अफ्लिक्टेड. तो उससे क्या हुआ कि मैरिज हुई विच इज नॉट एक्सेप्टेबल टू द फैमिली, पहली चीज. सेकेंडली डेथ हो गई या जो भी सेपरेशन हुआ हो गया. तीसरा, 8th हाउस आल्सो इंडिकेट द मोड ऑफ डेथ आल्सो, कि अगर 8th हाउस में बहुत सारे मेलिफिक प्लैनेट होंगे तो जो डेथ होगी दैट विल नॉट बी ए नॉर्मल डेथ, दैट विल नॉट बी ए पीसफुल डेथ, दैट विल बी अननेचुरल डेथ, आइदर अननेचुरल और डेथ विद लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स. बहुत लंबी बीमारी होती है, बहुत दिन आपको परेशान रहना पड़ता है, तो उस टाइप की डेथ होती है. तो 8th हाउस becomes important from that point of view also, कि अगर 8th हाउस में बहुत ज्यादा एफ्लिक्शन है तो एक तो शादी आपकी ठीक तरह से नहीं होगी, दूसरा वो शादी चलेगी भी नहीं, और तीसरा जो है ये मोड ऑफ डेथ को भी इंडिकेट करता. हाँ राजेश जी. और ओके, थैंक यू. तो मोस्टली जब हम देखते हैं कि लव मैरिज होगी या अरेंज्ड मैरिज होगी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल दे नो ओनली अबाउट दैट I've written here love marriage लग्न एंड 5th हाउस नहीं है. दिस इज बेसिकली 5th एंड द 7th हाउसेस. अगर 5th और 7th हाउस का एसोसिएशन होता है तब जो है लव मैरिज होने की पॉसिबिलिटी होती है. बट जैसा मैंने कहा कि ऐसा कोई कॉम्बिनेशन है कि वीनस मार्स दे आर वेरी क्लोज, they are not associated with any benefic planet, then also it may lead to love marriage. या कोई ऐसा combination हो गया, Venus Mars राहु का हो गया, Venus Mars केतु का combination हो गया, that may also indicate love marriage. And sometime even the combination of Venus and Rahu also. मान लीजिए Venus and Rahu का combination हुआ, it means that person is already involved with somebody. तो उससे भी हम कह सकते हैं कि love marriage होने की possibility है. तो कोई एक कॉम्बिनेशन नहीं है कि हम एक चीज को देखकर या 5th और 7th हाउस को देखकर ही बता दें, और भी बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं लव मैरिज के लिए. तो आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा. खाली ये कह देना कि हम सिर्फ 5th हाउस को देख लेंगे और 5th हाउस से पता लग जाएगा लव मैरिज हो गया, नहीं, दैट इज नॉट करेक्ट एक्चुअली. नाउ प्रॉब्लम्स आफ्टर द मैरिज. प्रॉब्लम्स आफ्टर द मैरिज, तो हमने देखा कि 8th हाउस बेसिकली इज ए कॉज ऑफ मैरिटल प्रॉब्लम्स, वो तो डेफिनेट है, एंड विच में लीड टू द सीरियस प्रॉब्लम्स. बट और भी तरीके से, जैसे ही कहा कि असेंडेंट एंड 7th लॉर्ड आर नेचुरल मैलिफिक्स. अगर दोनों ही असेंडेंट भी और 7th लॉर्ड दोनों ही नेचुरल मैलिफिक प्लैनेट्स हैं, क्योंकि मैरिज इज बिटवीन दिस टू पर्सन्स, असेंडेंट एंड द 7th हाउस. तो दोनों अगर नेचुरल मैलिफिक हैं तो दे आल्सो इंडिकेट problems in the marital life. 7th lord in the 3rd house and malefics associated with the 7th house. Naturally, again a bad combination, because house of marriage is it's a bad placement of house of marriage. तो उसको भी हम कहेंगे ठीक नहीं है. Exchange of 7th and the 12th lord. देखिए 12th lord जो है, 12th house जो है, वो 7th house से 6th house होता है, 7th house से 6th हाउस होता है. तो नेचुरली जो अगर उससे एक्सचेंज हो रहा है तो 6th हाउस इज द हाउस ऑफ लॉस, हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स. तो जब भी इवन अगर 7th हाउस का लॉर्ड भी 12th हाउस में चला जाता है तो दैट आल्सो इंडिकेट्स
प्रॉब्लम्स इन द मैरिटल लाइफ। यहाँ पर अगर एक्सचेंज हो रहा है 7th और 12th हाउस का, तो दैट मे लीड टू डाइवोर्स आल्सो। देन एफ्लिक्शन ऑफ द फर्स्ट लॉर्ड विद मार्स इन राहु। अगर जब कोई भी आपका पास आता है हॉरोस्कोप लेकर अब ये क्वेश्चन पूछने के लिए, तो आप देखते हैं कि फर्स्ट हाउस जो है, फर्स्ट हाउस का लॉर्ड ये एफ्लिक्टेड है विद द मार्स इन राहु। इट मींस द क्वेरिस्ट इज इंटरेस्टेड इन द डाइवोर्स। जो आदमी आया है वो हिमसेल्फ और हरसेल्फ इज इंटरेस्टेड इन द डाइवोर्स। लेकिन अगर 7th हाउस का एफ्लिक्शन होता है विद द मार्स इन राहु, लग्न का हुआ तो आपने कह दिया कि जो क्वेरिस्ट है वो इंटरेस्टेड है, बट उसी टाइम अगर लग्न तो ठीक है लेकिन 7th हाउस एफ्लिक्टेड है विद द मार्स इन राहु, then you can say your spouse is interested in divorce, not you. तो लग्न को देखना है, हमें 7th हाउस को देखना है। लग्न का एफ्लिक्शन है तो जो पूछने आया वो खुद ही इंटरेस्टेड है डाइवोर्स देने में, और अगर 7th हाउस का एफ्लिक्शन है तो उसका स्पाउस जो है वो इंटरेस्टेड है डाइवोर्स देने में। और मान लीजिए लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, ऑलरेडी लीगल प्रोसीडिंग चल रही है, तो नेचुरली कभी कभी ऐसा होता है कि दे कम बैक या वो लीगल प्रोसीडिंग को विड्रॉ कर लेते हैं। तो उसमें यही कहा कि अगर लीगल प्रोसीडिंग ऑलरेडी ऑन है और उस समय अगर असेंडेंट लॉर्ड रेट्रोग्रेड है, असेंडेंट लॉर्ड शुड बी रेट्रोग्रेड। सेकेंडली इट शुड बी आस्पेक्टेड बाय वीनस और जुपिटर, aspected by Venus or Jupiter. Then they say that couple will give up the idea of divorce. They may take the case back actually, and they may start living together again. तो ascendant lord को retrograde होना चाहिए और उसके ऊपर किसी भी जुपिटर या Venus बेनिफिक प्लैनेट का aspect होना चाहिए। तो उस केस में आप कह सकते हैं कि प्रोसीडिंग्स कंटिन्यू नहीं करेंगी and they will decide to give up the divorce case. Uncle, just a clarification. ये ascendant lord is retrograde. इसका I'm just trying to understand the underlying retrograde का मतलब होता है कि there is a change in the situation. I see. There is a change in the situation. जैसे हम कहते हैं कि अगर आपके हॉरोस्कोप में कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट है और जब एक्चुअल में ट्रांजिट में भी रेट्रोग्रेड होता है, तो there is a possibility of change in the present situation. जो सिचुएशन चल रही है उसमें चेंज होने का। तो रेट्रोग्रेड का मतलब सिर्फ यही है कि असेंडेंट अगर रेट्रोग्रेड है तो देयर आर चांसेस ऑफ रिवर्सल ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन, यू कैन से। गॉट इट। या अनिल जी क्वेश्चन और बताइए। हाँ अनिल जी 7th लॉर्ड इज इन 6th हाउस एंड 6th बिकम्स 12th टू 7th, तो लॉस होना चाहिए। तो बैड पोजीशन, 7th lord in the 6th house is really a bad position. इससे क्या नुकसान हो सकता है? इससे दो चीजें होती हैं। देखिए 7th का लॉर्ड 12th हाउस में चला गया, 6th हाउस में चला गया, तो अपने से 12th हाउस में चला गया। तो इसकी दो चीजें हैं, एक तो either your spouse may be sick और spouse may suffer from lot of diseases, actually हेल्थ उसकी ठीक नहीं होगी, पहली चीज। एंड सेकेंडली क्योंकि 12th है तो दिस इंडिकेट द लॉस ऑफ द स्पाउस आल्सो, और यू कैन से सीरियस प्रॉब्लम्स इन द मैरिटल लाइफ। तो आप किसी का भी देखिए कि अगर 7th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस में है तो पहले तो उसकी स्पाउस की हेल्थ अच्छी नहीं रहती, यू कैन सी एनी हॉरोस्कोप, और अपने से 12th चला गया, तो naturally there is a possibility of losses in the marriage, losses due to the marriage, loss of the spouse also. और अनिल जी यदि 7th और 6th में एक्सचेंज है तब क्या होगा? तभी वही पोजीशन है कि सेम प्रॉब्लम, हेल्थ तो खराब होगी स्पाउस की। ओके, बात तो वही है, 7-6 का एसोसिएशन हो रहा है। देखिए दो चीजें हैं, किसी भी हॉरोस्कोप में एक्सचेंज गिव्स ए राजयोग, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, और बट किसी चीज में खराब भी हो सकता है। जैसे मान लो 6th और 7th हाउस का एक्सचेंज हुआ, राजयोग तो बन गया आपके हॉरोस्कोप में, बट दिस इज बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैरिटल रिलेशंस। जैसे अभी हमने कहा कि 5th और 12th हाउस का अगर एक्सचेंज होता है तो देयर इज अ चांसेस ऑफ मिसकैरेज, यही तो कहा हमने। बट 5th और 12th का जो एक्सचेंज हो रहा है वो तो राजयोग तो बना ही रहा है आपके हॉरोस्कोप में, लेकिन उस एस्पेक्ट के लिए खराब है, प्रोजेनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहेंगे वो खराब है। तो ऐसे ही जब यहाँ पर
7th और 6th का एसोसिएशन हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो ठीक है, राजयोग तो ठीक है, लेकिन इस बैड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द हेल्थ ऑफ द स्पाउस आल्सो। ठीक सर, ओके। ठीक। अंकल एक मुझे बेसिक क्वेश्चन है, कैन आई आस्क इट नाउ अबाउट एक्सचेंज? नहीं, व्हाई नॉट, प्लीज। अंकल एक्सचेंज में मुझे ये तो समझ में आता है कि जब यू नो प्रॉपर एक्सचेंज, आई अंडरस्टैंड, बट आई हैव एन एग्जांपल आई वांट टू चेक विद यू कि अगर आप कहें कि जुपिटर इज प्लेस्ड इन द 3rd हाउस इन साइन नंबर 9, so in his own sign, and placed with sun is also in sign number 9 with Jupiter, correct, and in the 11th house, which is for sign number 5, which is sun's sign, there, of course वहां पे एस्पेक्ट होगा जुपिटर का। But this is not an exchange. हाँ, so ये मैं समझना चाहती हूँ। Exchange means when the 11th lord is in the whichever house is Jupiter is there, and Jupiter is in that house, 11th house. ये तो क्या हुआ कि दो हाउसेस के लॉर्ड इकट्ठे बैठ गए। एक्सचेंज का मतलब होता है कि फर्स्ट का लॉर्ड 7th में और 7th का लॉर्ड 1st में। समझ गए, इसमें एसोसिएशन हो गया, लेकिन you say it's association है? ये एक्सचेंज नहीं हुआ, दिस इज जस्ट द प्लेसमेंट ऑफ लॉर्ड ऑफ 2 हाउसेस टुगेदर। Got it. And will we say that Jupiter and Sun are associated then? हाँ, naturally they are together, so they are associated, but this is not an exchange. Understood. ठीक है। एक्सचेंज तो जब होता है कि दोनों हाउसेस के लॉर्ड एक दूसरे हाउस में होते। हाँ, वो मैं समझ गई अंकल, थैंक यू। Now next question, which is very important nowadays, return of wife, whether wife will come back or not. And I think most of the questions nowadays are of this type only. So it says that wife will not return if sun is in the 1st, 2nd or 3rd house and Venus is in the 5th, 6th or 7th house. If at the time of query you find that sun is placed in either of these 3 houses and Venus is placed in either of these 3 houses, then also there is no question of return of wife. Then wife will return if Venus is neither retrograde nor combust. Matlab Venus is well placed. It's neither retrograde nor combust. And moon is waxing. It's not waning, moon is waxing. So moon is increasing the size. It is in the Shukla Paksh, you can say. So naturally when moon and Venus are strong, then there is a possibility of return of wife. Then married couple living separately will be. Sir, इस वाले केस में Venus is neither retrograde or combust. So either it's Venus is in trick house, then also it would be considered as wife will return. What it means that the Venus should be strong. Okay. Venus should be strong. Purpose is if Venus is strong, naturally that can bring the wife back actually. And if it's in trick house but it is in exalted sign, then it will be strong, good. देखिए trick house में तो weak हो गया, but अगर trick house में नहीं है, किसी अच्छे house में है और retrograde भी नहीं है, combust भी नहीं है, then there is all the possibility. But अगर trick house में हो गया तो naturally you have to see what is the strength of Venus. अगर फिर भी Venus आपको ठीक लगता है उस house में तो पॉसिबिलिटी है। अगर लगता है कि वीनस त्रिक हाउस में जाने से तो वीक होता ही है, बट और भी अगर किसी तरह से वीक है तो फिर पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। तो सभी एक्सॉल्टेड होने पर भी बट पर्पस इसकी पर्पस दिस मीनिंग ऑफ दिस टू इज ओनली दैट मून एंड वीनस आर स्ट्रांग। मून एंड वीनस शुड बी स्ट्रांग। रेट्रोग्रेड जनरली मींस स्ट्रांग। वीनस रेट्रोग्रेड होना चाहिए स्ट्रांग होने के लिए। रेट्रोग्रेड वीनस इज वेरी डेंजरस। हाँ, मेरा ये क्वेश्चन था कि अगर एक्सॉल्टेड होके वीनस 6th से 12th में हो तो हम देखिए जब हम रेट्रोग्रेड प्लैनेट की बात कर रहे थे, वी हैव सीन दैट whenever planet gets retrograde it gains in strength, and Venus is a planet of sex in the case of male and Mars is a planet of sex in the case of female. So whenever Venus is retrograde in any male horoscope, okay, so then it indicates the indulgence in the sex actually, and such people, I told you about that book actually. It's written by some lady, English, her name is English, on the retrograde planet. She found out that if Venus is retrograde in the case of male horoscope, that male is likely to get involved in sex scandal at one or
other time in its life. Similarly, if Mars is retrograde at the time of birth, in the case of a female horoscope, the same position may come with that female also. So Venus should not be so strong. Okay, it can damage you actually. So from that, otherwise Venus is okay. Venus is retrograde. Naturally, it gives you all material comforts. It gives you all luxuries. It gives you all material wealth. But from that angle, it is bad. तो अनिल जी, is it the reason कि retrograde में Venus में marriage नहीं होता उस period में, बोलता तारा डूबा हुआ, is it correct? नहीं नहीं, तारा डूबना doesn't mean कि Venus is retrograde. तारा डूबना means Venus is combust. Venus is near to the sun. और तारा डूबने में खाली Venus ही नहीं होता. We have to see both Jupiter and Venus. If either Jupiter or Venus is combust, then we say तारा डूबा हुआ है. और क्योंकि देखिए दो ही planet तो strong हैं. हम कोई भी शुभ काम कर रहे हैं, शादी जैसा अगर शुभ काम कर रहे हैं, तो naturally we need the blessing of Jupiter, which is very important planet. और हम ये भी चाहते हैं कि जब शादी हो रही है तो सब कुछ सुख समृद्धि बनी रहे, सब कुछ आनंद से रहें ये लोग. तो naturally Venus also should be strong. तो जो भी कोई भी हम ऑस्पिशियस काम करते हैं, इस टाइप का शुभ काम करते हैं, तो देखते हैं कि कम से कम ये दो प्लैनेट तो ठीक हों. और यही है, आप देख रहे हैं कि 15 दिसंबर से अभी तक शादियां नहीं हो रही, 4-5 महीने में जो है, क्योंकि कोई शुभ मुहूर्त नहीं था. क्योंकि इस पीरियड में कभी वीनस कभी जुपिटर, दे वर वेरी नियर टू द सन. तो इसलिए कम्बस्ट अब शादी होना शुरू हुई है, क्योंकि जब ये कम्बस्शन जो है वो खत्म हो गया. ठीक है जी, ठीक. तो फिर कहा कि मैरिड कपल लिविंग सेपरेटली will be together or the wife will come back if unafflicted lords of first and the 7th houses are associated. Same thing, if first and 7th houses are associated, they are unafflicted, they are benefic, so naturally the wife will again come back. Now if lords of first and 7th house are retrograde, both, not one, if lords of first and 7th houses are retrograde, then no reconciliation is possible. But if one is retrograde, then there are chances of coming back together. अगर दोनों retrograde हैं, first house के lord भी और 7th house के lord भी, तो reconciliation possible नहीं है. लेकिन अगर retrograde है दोनों में से, then there is a possibility of their coming together. Now question is someone asking whether my daughter will get married. When my daughter will get married. तो आपने horoscope बनाया है और daughter के बारे में question पूछ रहा है, तो इसको हमने लग्न मानना पड़ेगा. इसको लग्न मानना पड़ेगा 5th house को, क्योंकि daughter के बारे में question है. तो इसको हम 1st house मानकर हम prediction करेंगे. और यहाँ पर जो भावना अभी कह रहे थे आप एक्सचेंज का, तो यहाँ पर देखिए इसका लॉर्ड कहाँ है, इस हाउस में मरकरी, और इसका लॉर्ड कहाँ पर है, यहाँ पर. तो इसका लॉर्ड यहाँ पर और इसका लॉर्ड यहाँ पर. दिस इज नोन एज एक्सचेंज. या दिस इज द रियल एक्सचेंज. तो यहाँ पर जो एक्सचेंज हो रहा है बिटवीन लॉर्ड ऑफ फर्स्ट एंड 7th हाउस, तो देयर कैन नॉट बी अ बेटर पोजीशन देन दिस. मैरिज की बात हो रही है और 1st और 7th हाउस के लॉर्ड का एक्सचेंज हो रहा है. तो नेचुरली दे कैन नॉट बी अ बेटर सिचुएशन देन दिस. तो हम कह सकते हैं कि इमीडिएटली चांसेस हैं मैरिज के जो है. अब इसमें यह है कि व्हेन आई विल गेट मैरिड, बताइए इसमें क्या करेंगे आप. Again, we have to see the 1st and 7th house. Yes. Question अपने बारे में है, तो हम 1st और 7th हाउस की पोजीशन देखेंगे. तो 1st और 7th हाउस की क्या पोजीशन है? The Lagna Lord is afflicted with Sun, Ketu. And 7th Lord is with Venus, Mars. 7th Lord is exalted. देखिए लग्न लॉर्ड जो है, this is afflicted with Sun and Ketu. ठीक है, इसके ऊपर कोई बेनिफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है.
और यहाँ पर भी लग्न के ऊपर भी किसी प्लैनेट का एस्पेक्ट नहीं है यहाँ पर, तो कोई प्लैनेट नहीं एस्पेक्ट कर रहा। लॉर्ड इसका मरकरी है और मरकरी जो है सन और केतु के साथ एफ्लिक्टेड है। नाउ But Jupiter is exalted. जुपिटर इज एक्सॉल्टेड यहाँ पर, सैटर्न भी देख रहा है, मार्स 7th हाउस को सैटर्न देख रहा है। बट यहाँ पर हाँ 7th हाउस को सैटर्न देख रहा है, पहली चीज। और दूसरा ये है कि जो जुपिटर है तो ये तो है एक्सॉल्टेड तो है, लेकिन इसका जो एफ्लिक्शन है दैट इज विद मार्स एंड सैटर्न, विद मार्स एंड सैटर्न। तो थोड़ा ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि 7th हाउस बहुत खराब है, बट फर्स्ट हाउस भी ना तो बहुत अच्छा है और ना ही 7th हाउस बहुत अच्छा है। जैसे पहले केस में देखा कि आपने सीधा एक्सचेंज हो गया एंड स्ट्रेट अवे यू सेड कि बहुत जल्दी मैरिज हो जाएगी, बट यहाँ तो नाइदर फर्स्ट हाउस इज गुड नॉट 7th हाउस इज सो गुड। तो नेचुरली ऐसे केस में हम यही कहेंगे कि टाइम लगेगा, अभी इमीडिएटली शादी नहीं होगी। तो वही कहा कि ये फर्स्ट हाउस भी एफ्लिक्टेड है और 7th हाउस भी एक्सॉल्टेड तो है जुपिटर, इसलिए ये पॉजिटिव इंडिकेशन है, बट ये सैटर्न और मार्स के साथ एफ्लिक्टेड है और इसके ऊपर सैटर्न का एस्पेक्ट भी है एंड सैटर्न नेचुरली इज अ कॉज ऑफ डिले। तो यही हम कहेंगे कि अभी शादी नहीं होगी, शादी में डिले होगा। तो अब कोई पूछता है फर्दर क्वेश्चन कि कितना डिले होगा, तो कैन वी आंसर दैट? हाँ, वी कैन आंसर दैट आल्सो। जब ये ट्रांजिट देखकर कि कौन सा प्लैनेट कब ट्रांजिट में फेवरेबल होगा, मान लीजिए कि हम ऐसी कोई केस है मान लीजिए, तो हमने देखा कि जुपिटर या मून का कोई फेवरेबल ट्रांजिट होने वाला है, या कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है नियर फ्यूचर में कि जब ये कोई इत्साल योग वगैरह बन जाए फर्स्ट और 7th हाउस के लॉर्ड के बीच में, तो हम कह देंगे कि ये इत्साल योग बनने वाला है या इतने टाइम के बाद बनने वाला है, तो उस टाइम मैरिज होने की पॉसिबिलिटी है। या ट्रांजिट में हम देखते हैं कि कोई प्लैनेट चेंज होने वाला है एक कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद, तो बेस्ड ऑन दैट आल्सो वी कैन से कि इस तो जैसे इसी सेम केस में अभी करंट टाइमिंग के अकॉर्डिंग फिर हम इसमें क्या बोल सकते हैं, व्हेन जुपिटर विल, अभी तो जुपिटर 11 साइन में है। हाँ, आपने कहा डिले होगा, ये कहा ना इसमें कि और हमें पता है कि जुपिटर आजकल यहाँ चल रहा है इस साइन में, और जुपिटर इस साइन में कब आएगा? 12th में आएगा तब। हाँ, तब करा देगा नेक्स्ट ईयर, बिल्कुल नेक्स्ट ईयर अप्रैल में आएगा, मार्च में जब शादी करा देगा। तो इस टाइप से आप कह सकते हो, ठीक। अब नाउ क्वेश्चंस अबाउट प्रोफेशन। अब बहुत सारे जो क्वेश्चंस हैं प्रोफेशन के बारे में। पहला तो मान लो somebody is appearing in a competitive exam कि whether I will get success in competitive exam or not, एक तो ये हो गया। सेकंड, इंटरव्यू के टाइम भी बहुत लोग पूछते हैं कि मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ और इंटरव्यू में मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। फिर जो लोग जॉब करते हैं तो प्रमोशन का सवाल आता है कि मेरा प्रमोशन कब होगा, वो भी लोग पूछते हैं। या कभी कभी नौकरी में कुछ सीरियस प्रॉब्लम चल रही है, कोई केस वगैरह चल रहा है और चांसेस हैं कि कोई टर्मिनेशन के या कोई सीरियस प्रॉब्लम के नौकरी में, तो उसके बारे में भी लोग क्वेश्चन पूछते हैं। और लास्ट में पूछते हैं फॉरेन ट्रेवल, मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरा फॉरेन ट्रेवल की पॉसिबिलिटी कब है। तो इस टाइप के नॉर्मली क्वेश्चंस होते हैं जब हम आंसर देते हैं, लोग प्रोफेशन के बारे में पूछते हैं। तो जहाँ तक सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है, 5th हाउस इज बेसिकली द हाउस ऑफ कंपटीशन, तो हम फर्स्ट हाउस को भी देखते हैं और 5th हाउस को भी देखते हैं। जैसा हमने और केसेस में देखा कि लग्न और कंसर्न हाउस अगर स्ट्रॉन्ग हैं तो हम कहेंगे उसका आंसर अफर्मेटिव में देंगे, उसका पॉजिटिव में देंगे, और अगर लग्न और 5th हाउस वीक हैं, एफ्लिक्टेड हैं, तो नेचुरली सिलेक्शन नहीं होगा। और दूसरी चीज ये है कि मान लीजिए कोई आपसे पूछ रहा है कि मेरा सिविल सर्विस एग्जाम में सिलेक्शन होगा या नहीं, या गवर्नमेंट में मुझे कोई सीनियर पोजीशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो गवर्नमेंट में सीनियर पोजीशन मिलने के लिए 2 प्लैनेट का स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। वन इज द सन एंड अदर इज सैटर्न। या तो किसी भी जो गवर्नमेंट में अगर आपको सीनियर पोजीशन मिलनी है तो एटलीस्ट दिस 2 प्लैनेट शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर ये 2 प्लैनेट स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपको सीनियर पोजीशन गवर्नमेंट में या पॉलिटिक्स में नहीं मिल सकती, क्योंकि सन तो अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है और सैटर्न रिप्रेजेंट करता है आपके स्टेटस को। तो अथॉरिटी हो सकती है, मान लीजिए कोई
इवन एक पुलिस का सिपाही है, कांस्टेबल है, ही हैज लॉट ऑफ अथॉरिटी, आपके व्हीकल को रोक के चालान कर सकता है, लेकिन स्टेटस नहीं है उसका, स्टेटस तो पुलिस कमिश्नर का है। तो सन अगर स्ट्रांग है तो यू मे गेट दैट टाइप ऑफ पोस्ट, जूनियर पोस्ट, बट अगर आपको स्टेटस भी लेना है साथ में तो बोथ शुड बी स्ट्रांग, सन एज वेल एज सैटर्न। तो इसीलिए जब कोई भी अगर क्वेश्चन पूछता है तो यू हैव टू सी द क्वेश्चन इज अबाउट विच एग्जाम, इज इट कनेक्टेड विद द गवर्नमेंट और द सीनियर पोजीशन इन द गवर्नमेंट। तो उस टाइम आपको ये भी देखना जरूरी है कि सन और सैटर्न दोनों प्लैनेट स्ट्रांग होने चाहिए, जब भी आपका सीनियर गवर्नमेंट पोजीशन आपको मिल सकती है। या इवन जैसे लोग पूछते हैं इलेक्शन चल रहे हैं कि मैं मिनिस्टर बनूंगा या नहीं बनूंगा, तो वही चीज यहाँ भी है कि मिनिस्टर बनने के लिए भी दोनों चीजें बहुत जरूरी हैं कि सन भी स्ट्रांग होना चाहिए और सैटर्न भी स्ट्रांग होना चाहिए। ये गवर्नमेंट सर्विस के लिए हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, पूछिए। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन था जी। सर, अगर इसमें पेरेंट्स पूछें बच्चों के लिए, तब हम कैसे मतलब चेक करेंगे? वही मैंने कहा कि बच्चे के लिए पूछ रहा है तो फिफ्थ हाउस को लग्न मान लीजिए। बच्चे के लिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो फिफ्थ हाउस को लग्न मान के करिए उसको। आपको लग्न तो चेंज करना है और क्या करना है। क्वेश्चन में भी अबाउट एनी रिलेशन, तो यू चेंज द लग्न अकॉर्डिंगली। ओके सर। कोई मान लो ये भी पूछता है कि मेरी भाभी मान लीजिए कि एक सिविल सर्विस में एग्जाम में दे रही है, बड़ी भाभी है, तो कैसे देखेंगे आप उसको? सर 11th हाउस से 7th हाउस, 5th हाउस से। और क्या, 11th हाउस से 7th हाउस देख लिया आपने, 5th हाउस, तो उसके लिए 5th हाउस हो गया। कोई अपने ग्रैंडफादर के बारे में पूछ रहा है तो कैसे देखोगे आप? फादर के फादर 9 से 9 देख लिया आपने, इसमें क्या प्रॉब्लम है? कोई भी एनी टाइप ऑफ रिलेशन, all relations can be seen from the horoscope. कोई भी रिलेशन आप नेम करिए, you can find out the house. ओके सर। तो हाँ, फिर कहा कि अगर लग्न और 5th हाउस तो ठीक है, but even if there is an association of 1st and 10th house, because this is concerning with the job, concerning with the profession, so that also indicates success in the competitive exam. अगर उस टाइम कोई आता है और उस टाइम आप देखते हैं कि 1st हाउस और 10th हाउस का एसोसिएशन हो रहा है, तो that also indicates success in the competitive exam, because profession से ही connected है competitive exam। तो फिर उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू। आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और आप पूछते हैं कि मेरा इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो अब इंटरव्यू इज डिफरेंट देन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इंटरव्यू में कुछ जो प्लैनेट है, कुछ जो चीजें हैं, कुछ हाउसेस हैं, वो ज्यादा मैटर करते हैं। सबसे पहले मून प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज मून इंडिकेट्स मेंटल प्रिपेयर्डनेस। देन सेकंड हाउस, क्योंकि आपको वहां बोलना है इंटरव्यू में जाके, तो नेचुरली सेकंड हाउस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल अगर आपको इंटरव्यू में सक्सेस लेना है। तो इसीलिए कहते हैं कि अगर जब भी हम इंटरव्यू से कनेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे तो असेंडेंट, सेकंड हाउस, 5th हाउस एंड मून आल्सो शुड बी स्ट्रांग। दैट ओनली विल इंडिकेट सक्सेस इन इंटरव्यू। तो इसलिए मून और सेकंड हाउस जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि मून में आपको घबराना नहीं है। यू शुड मेंटेन द कॉन्फिडेंस, यू शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड, and second house is the house of speech, how you present yourself. तो ये एक, हाँ, इसमें आपने मर्क्यूरी के बारे में नहीं बात करी अंकल, वो about communication and analytical ability. नहीं, देखिए, I'm curious। हाँ जी, इस टाइम हम जो बात कर रहे हैं, we are not considering the quality. Already उसमें selection हो चुका है competitive exam में। The person is already capable, person is already intelligent. The question is only whether he will get success in the इंटरव्यू। वो तो ऑलरेडी उसने लाइन पार कर ली है। अगर कोई वैसे बेसिक क्वेश्चन होता कि ये कुछ बनेगा या नहीं बनेगा, देन द क्वेश्चन ऑफ मर्करी कुड हैव कम। यहाँ तो ऑलरेडी सिलेक्शन हो चुका है, तो इंटेलिजेंस पे तो आप डाउट नहीं कर सकते उसके कुछ। इट्स ओनली क्वेश्चन इज कि हाउ यू प्रेजेंट योरसेल्फ। इंटरव्यू उसका रिटन तो हो चुका है, रिटन में तो वो पास कर चुका है। तो अंकल कम्युनिकेशन के लिए सेकंड हाउस ही देखते हैं, नॉट मर्क्यूरी है देन दैट। या सेकंड हाउस बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट।
I see. हाँ, तो बट अगर आप कहें कि उस फॉर्म में कि जो कारक है स्पीच का वो तो मरकरी ही है, तो उस सेंस में मरकरी will also play an important role, but the most important is the moon and the second house. नहीं बता पर अनिल जी, सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में तो मरकरी पिक्चर में आना चाहिए था। हाँ, तो हमने 5th हाउस देखा, 5th हाउस जो सक्सेस इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो मरकरी है। 5th हाउस का जो बेसिक कारक है इस पर्पस के लिए दैट इज मरकरी। तो मरकरी, तो जब हम 5th हाउस को देख रहे हैं तो नेचुरली मरकरी उसमें आता ही है। और जैसे भावना ने कहा कि ये मैटर करेगा, मरकरी इस स्टेज पे मैटर करेगा डेफिनेटली, कि whether you will get selected in the competitive exam or not, but not at this stage. Okay. तो जब हम 5th हाउस की बात कर रहे हैं तो नेचुरली वो मरकरी का इन्वॉल्वमेंट तो हो ही जाता है। अब प्रमोशन होगा या नहीं होगा, then again we have to see ascendant in the 10th house. तो यही कहा कि अगर ascendant और 10th लॉर्ड अपने अपने हाउसेस में है, अनएफ्लिक्टेड है, तो that indicates promotion. Ascendant and 10th lord they aspect each other or have mutual exchange. अगर exchange है फर्स्ट हाउस और 10th हाउस के बीच में, या दोनों लॉर्ड एक दूसरे को एस्पेक्ट कर रहे हैं और उसके साथ कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं है, तो that also indicate promotion. Then exchange between lord of 10th and 11th houses. 11th house is the house of gain. So naturally when 10th and 11th houses they exchange, it indicate gains in the profession, that is promotion. And aspect of a strong moon or the ascendant lord. So that again becomes a plus point. Exchange or association of 9th and 10th lord. जैसे हम देखते हैं कि 9th और 10th हाउस का जब एसोसिएशन होता है दैट इज अ फॉर्च्यून, सो नेचुरली फॉर्च्यून इज हेल्पिंग यू। तो जब भी 9th और 10th हाउस के लॉर्ड का भी एसोसिएशन होगा या एक्सचेंज होगा, वो भी आपको ये इंडिकेट करेगा कि प्रमोशन होगा। तो या तो 10th 11th का हो, फर्स्ट और 10th हाउस का हो, या 9th और 11th हाउसेस का हो, तीनों केसेस में इट इंडिकेट सक्सेस और प्रमोशन। सर मान लीजिए 10th लॉर्ड लगन में बैठा है मरकरी उचका होके, तो वो भी अच्छा ही होगा। नेचुरली एसोसिएशन हो गया ओके, फर्स्ट और 10th हाउस का। और दूसरा यह है कि इसके ऊपर कोई मैलिफिक इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, दे शुड बी स्ट्रांग। अगर मैलिफिक इन्फ्लुएंस है तो नहीं होगा, बट 10th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, नेचुरली 10th हाउस हैज एन एसोसिएशन विद द फर्स्ट हाउस। अब प्रॉब्लम इन द सर्विस, ऑलरेडी जैसे देखते हैं गवर्नमेंट में या इवन इन द प्राइवेट नाउडेज, समटाइम वी लैंड अप इनटू सीरियस प्रॉब्लम्स। सो क्वेश्चंस कम्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ सर्विस आल्सो। तो और सडनली वैसे भी कभी हो जाता है कि बॉस इज नॉट हैप्पी और सम सर्कमस्टांसेस लाइक स्टाफ को कम करना है, तो नौकरी से निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। तो यही कहते हैं कि कोई भी जब पूछने आता है इन चीजों के बारे में, तो एसोसिएशन ऑफ 10th एंड 8th लॉर्ड, अगर 8th लॉर्ड के साथ एसोसिएशन होता है तो वो भी जो है इस टाइप की चीजों को कंफर्म करता है। 10th लॉर्ड त्रिक हाउस में हो तभी भी ये पॉसिबिलिटी है। एक्सचेंज ऑफ 10th लॉर्ड विद द लॉर्ड ऑफ त्रिक हाउस, 10th हाउस का लॉर्ड जो है त्रिक हाउस के लॉर्ड के साथ एक्सचेंज कर रहा है, या 10th लॉर्ड कंबस्ट है या बैडली अफ्लिक्टेड है। 10th हाउस जो है, 10th हाउस का लॉर्ड या तो कंबस्ट है या बैडली अफ्लिक्टेड है, दैट आल्सो इंडिकेट द सेम थिंग। या फिर असेंडेंट लॉर्ड ही बहुत ज्यादा वीक है, कंबस्ट है या बैडली अफ्लिक्टेड है। क्योंकि किसी भी चीज को सक्सेस या पॉजिटिव आंसर देने के लिए आप मान के चलिए कि लग्न तो स्ट्रांग होना ही चाहिए। लग्न एंड द कंसर्न हाउस प्रिंसिपल इज सेम, ये सब रटने की या इनको कोई याद करने की जरूरत नहीं है। यू हैव टू टेक इनटू अकाउंट ओनली टू थिंग, द लग्न एंड द कंसर्न हाउस। इफ दे आर स्ट्रांग एनफ देन यू कैन answer in the positive, otherwise in the negative. Now foreign travel. So let's see which are the houses which indicate the travel, which are the houses which are concerned with the travel. तो जो थर्ड हाउस होता है ना, that is a house of short travel. जैसे हम लोग कहें कि इंडिया में जैसे बहुत से लोग मार्केटिंग में हैं या सेल्स में हैं, तो उनका कंटिन्यूस ट्रैवल होता रहता है, जॉब इस टाइप का होता है।
जब भी हम short travel की बात करेंगे, then that is the third house. Third house doesn't indicate foreign travel or a long distance travel. It only indicates short travel. Seventh house indicate long distance travel. And this may be foreign travel, this may not be foreign travel. Now, let's say we want to go from India to Nepal, India to any other Bangladesh or Pakistan or some nearby country. So then seventh house may get involved. But if you are talking of a long distance travel, like going from here to USA or some Europe, then ninth house will play a very important role. Then ninth house becomes important for a very long distance travel. And then people talk about the settlement in the foreign countries. So when we talk of settlement in the foreign country, then the 12th house becomes important. The 12th house is the house of foreign settlement, and to some extent for foreign travel, 8th house also get involved in that. So we have to consider all these things. And now at the time of asking question, there is involvement of movable signs. So naturally, it indicates the chances of travel actually. And you can see which house. If it is a third house, then definitely not the foreign travel. But if it is a ninth house, it is a seventh house, it is a 12th house, then there is a possibility of foreign travel. Then ascendant lord in the movable sign. Ascendant lord in a movable Sorry, sign. sir, ये first वाला जो point है movable signs provide clue to foreign travel. So sir, किसका movable sign? वही मैंने कहा कि किस पर्पस के लिए. मान लीजिए कि आप ऑलरेडी जॉब में हैं, यू आर गोइंग ऑन एन ऑफिशियल ट्रिप. So naturally, Lagna and the 10th house become important. You are going for an education trip or for education. Then 10th house is not connected with that, not concerned with that. Which house will get concerned? 5th. That depends whether you're going for undergraduate or if you're going undergraduate, then 4th house. If you're going for a PG, then 5th house. And if you're going for a research, then 9th house. 9th house. So we have to see the concerned houses. Concerned house is first house, and whosoever is whichever is the concerned house. So both ascendant and concerned house. Correct. मतलब business के लिए जा रहे हैं. 7th house. 7th house हो गया. Treatment के लिए जा रहे हैं. ये भी हो सकता है treatment के लिए जा रहा हूँ. 12th house. हाँ, तो ये जो भी concerned house है, तो along with the Lagna we have to see that house. तो ये उन्हीं की बात हो रही है कि जो movable sign है अगर उन houses में, so they provide a clue to the foreign travel. ऐसे ही ascendant lord movable sign में है और aspected by the planet from a movable sign. वही है कि ascendant जो है वो it's a lot of influence of movable signs planet. तो उसमें भी chances होते हैं कि travel करने के. Then 12th lord from the sign occupied by the first lord. 12th lord from the sign occupied by the first lord. You have to see where the first lord is posited. So from that sign, you have to see the 12th house. And we are talking of the lord of that house. So if that lord is in the quadrant or in the trine or is strong, then also there are chances of foreign travel. 9th lord, now it's very strong. 9th lord in the 9th house or aspecting the 9th house. Naturally, 9th house indicate very long distance travel. Then 9th lord in the 10th, 11th, 2nd or 4th house. That also indicate foreign travel. Similarly, exchange of lord of 1st and 9th houses. Then 12th house associated with the benefic planet. So very positive indication for foreign settlement. कि अगर 12th house जो है, if it is associated with the benefic planets. Then powerful Jupiter or Saturn in the 4th house. Powerful Jupiter or Saturn in the 4th house, that also indicates chances of foreign travel. Then Rahu in the 2nd, 3rd, 4th and 8th house. If Rahu is placed in either of these houses, then person is feel happy on a foreign land. It means the person is comfortable if he settled abroad.
person feels happy on a foreign land actually. तो वो भी एक इंडिकेशन है कि अगर राहु इन हाउसेस में होता है तो लोग पूछते भी हैं कि मैं फॉरेन तो जा रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल रहूंगा या नहीं रहूंगा, तो राहु अगर इन हाउसेस में है तो वो भी एक इंडिकेशन है। यहाँ पर जैसे कोई पूछता है कि प्रमोशन होगा या नहीं होगा, तो यहाँ देखिए क्या पोजीशन है। तो वी हैव टू सी ओनली 2 हाउसेस, वन इज ascendant and 10th. फर्स्ट एंड द 10th हाउस। तो क्या पोजीशन है यहाँ पर? Mars is in ascendant lord is in 8th house. दोनों के लॉर्ड conflicted with Ketu. And Sun and Is in 6th. 10th house lord from itself it's in 9th प्रमोशन नहीं and होगा। exalted. असेंडेंट को देखिए पहले, असेंडेंट पे कोई प्लैनेट नहीं है, इसमें किन प्लैनेट का एसोसिएशन है, किन प्लैनेट का एस्पेक्ट है? Jupiter. जुपिटर एंड वीनस। Venus. दो प्लैनेट का एस्पेक्ट है, बड़ी स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है, एक्सॉल्टेड जुपिटर है और वीनस भी अपने साइन में है। These are two very strong planets which have an aspect on लग्न। लग्न का लॉर्ड कहाँ है? 8th house में मार्स, और इसमें केतु के साथ में है, 8th हाउस में है, केतु के साथ में है, बट दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट है, दोनों तरफ बेनिफिक प्लैनेट है। तो ये जो नेगेटिव इफेक्ट आया था थोड़ा सा 8th हाउस में प्लेस होने की वजह से या केतु के एसोसिएशन होने की वजह से, हम कह सकते हैं कि दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट है, तो उससे वो नलिफाई हो जाता है जो स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस था। एंड लग्न इज रियली स्ट्रॉन्ग क्योंकि ये वीनस और जुपिटर दोनों के दोनों प्लैनेट इसको एस्पेक्ट कर रहे हैं और लग्न के ऊपर कोई भी मेलेफिक प्लैनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। दैट इज अगेन ए ब्यूटी कि कोई भी एक मेलेफिक प्लैनेट यहाँ कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है इसको, और दो जब स्ट्रॉन्ग बेनिफिक प्लैनेट एसोसिएट हो जाते हैं तो लग्न बिकम्स रियली वेरी स्ट्रॉन्ग इन दिस केस। अब देखिए 10th हाउस की क्या पोजीशन है। 10th लॉर्ड 6th हाउस में है, उच्च का एग्जॉल्टेड है सर। exalted है। exalted है। अपने से 9th पोजीशन, अपने से 9th पोजीशन, जो प्रोफेशन में भाग्य है, जो प्रोफेशन का भाग्य है, और एक्सॉल्टेड है, उपाच्य स्थान में है, भले ही वो राहु का भी इन्फ्लुएंस है, बट इट्स इज गुड पोजीशन एंड दैट इंडिकेट्स, क्योंकि 9th हाउस में चला गया अपने से, हाउस ऑफ फॉर्चून में चला गया एज फार एज प्रोफेशन इज कंसर्न, तो दैट इज अ गुड इंडिकेशन प्रमोशन होगा। दैट इज अ गुड। तो सर इस केस में हम बोल सकते हैं प्रमोशन होगा, बट थोड़ा सा डिले हो सकता है बिकॉज थोड़ा बहुत ऑस्पेक्ट्स भी है मेलेफिक्स का, जैसे इसमें राहु का है ऑस्पेक्ट ऑन सन। नहीं, फिर भी देखिए ना, लग्न बहुत स्ट्रॉन्ग है। लग्न को अगर आप देखें, जब दो बेनिफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट है, वीनस और जुपिटर, दोनों देखिए कितने स्ट्रॉन्ग हैं। ये अपने साइन में एक्सॉल्टेड है, इसका लॉर्ड भी एक्सॉल्टेड है, इसका 10th हाउस का, और उपाच्य स्थान में, उपाच्य स्थान इज ऑलवेज गुड एंड अगेन दिस इज एसोसिएटेड विद बोथ द बेनिफिक प्लैनेट्स। यस, और इसको अगर हम देखें कि जुपिटर इसको एस्पेक्ट कर रहा है, जुपिटर आल्सो एस्पेक्टिंग मर्क्यूरी, तो तीनों बेनिफिक प्लैनेट का एसोसिएशन हो जाता है सन के साथ विद द लॉर्ड ऑफ 10th हाउस, तो इससे बेटर पोजीशन क्या होगी? लग्न लॉर्ड और 10th लॉर्ड दोनों बेनिफिक से, हाँ, दोनों मतलब सारे बेनिफिक प्लैनेट के साथ एसोसिएटेड है। तो सर मेरा क्वेश्चन था कि ये होरेरी चार्ट है जैसे प्रश्न कुंडली, तो सर हम इसमें इत्साल योग या जो वहाँ उसकी एस्पेक्ट्स वगैरह अलग है वो नहीं चेक करेंगे, नॉर्मल वाली करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर मान लीजिए कि किसी भी हॉरोस्कोप में इत्साल योग बन रहा है लग्न और 10th हाउस के लॉर्ड के साथ, तो स्ट्रेट अवे आपका आंसर पॉजिटिव होगा। मान लीजिए लग्न यहाँ पर ये मार्स है और इसका लॉर्ड क्या है, ये है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर हम इनकी स्पीड को देखें, सन इज फास्टर प्लैनेट देन मार्स, सन इज फास्टर प्लैनेट देन मार्स। जो हमने स्पीड देखा था कि सबसे ज्यादा स्पीड फास्टर शुड बी बिहाइंड एक्चुअली, तो ये बिहाइंड है यहाँ पर। फिर हमने देखा था 3, 5, 9, 11 केसेस में जो दृष्टि होती है, अगर प्लैनेट एक दूसरे से
3, 5, 9, 11 पोजीशन में, तो दे एस्पेक्ट ईच अदर एंड दैट एस्पेक्ट इज फ्रेंडली एस्पेक्ट। तो इससे थर्ड है, ये एस्पेक्ट भी कर रहा है, एस्पेक्ट भी कर रहा है। ओनली थिंग इज कि अगर हम डिग्री वाइज देखें तो इसकी डिग्री कम होनी चाहिए, इसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, दैट इज द ओनली कंडीशन। तो आप देख लीजिए, अगर वो कंडीशन मीट कर रही है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो स्ट्रेट अवे योर आंसर इज पॉजिटिव, जैसे इस केस में हो रहा है। अगर इसकी मान लीजिए मार्स की डिग्री ज्यादा है, सन की डिग्री कम है, तो इसके लिए इट्स साल योग बिटवीन फर्स्ट एंड द 10th हाउस। सर, तो मतलब हम जो रूल्स अप्लाई करें वो मतलब दोनों को मिक्स करें या पर्टिकुलर होरारी वाले? नहीं, मिक्स करना है। एंड इत्साल योग इज अ वंडरफुल योग एज फार एज होरारी इज कंसर्न। अगर इत्साल योग बन रहा है फिर तो आपको कोई चीज देखने की जरूरत ही नहीं है, वो तो सबसे अच्छी पोजीशन है। और अनिल जी, यदि इत्साल योग 1, 4, 7, 10 रिलेशन में बन रहा है तब उसमें भी हम मानेंगे, क्योंकि एस्पेक्ट तो है ही है। उसमें ये नहीं कहता कि फ्रेंडली एस्पेक्ट होना चाहिए या एनिमी एस्पेक्ट होना चाहिए। इट डजंट से दैट थिंग, इट ओनली सेज कि हाँ, दे शुड हैव एन एस्पेक्ट, दैट्स ऑल। No book says that they should have a friendly aspect. Aspect होना चाहिए बस। Sir, if a question is related to increment, whether the person will get increment or not, same so thing, that same 10th house से ही देखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर 11th का भी इन्वॉल्वमेंट होगा? Just like प्रमोशन, या इसमें आप अगर 10th और 11th का भी एसोसिएशन हो जाता है तो और भी ज्यादा पक्की चीज हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आप देखते हैं कि लग्न और फर्स्ट और 10th तो ठीक है, अगर 10th और 11th का भी एक्सचेंज हो रहा है किसी तरीके से या एसोसिएशन हो रहा है, तो उसमें भी एक पॉजिटिव आपको इंडिकेशन मिलेगा, क्योंकि गेन इन द प्रोफेशन है। वो भी प्रमोशन हो या इंक्रीमेंट हो, करीब करीब एक ही बात है, क्योंकि प्रमोशन भी हम देखते हैं, वो भी हम 11th हाउस को भी कंसिडर करते हैं। तो 11th हाउस तो वो गेन का हुआ ही प्रोफेशन के लिए। So I think this is all about horary. Sir, इस वाले केस में if we see 11th house Lord Mercury वो debilitated हो गया। देख रहा है अपने हाउस को। हाँ, देख रहा है पर debilitated है, भले debilitated हो, वहां तक इस हाउस का सवाल है। वो तो एक तो अपने साइन को देख राजयोग बन गया, और इसकी पोजीशन कहाँ पर है? पोजीशन इज इन द 5th हाउस, where an aspect and of Jupiter aspect, yeah, aspect of exalted Jupiter, aspect of very strong Saturn also. तो उसकी पोजीशन भी आपको देखनी है, भले वो डेबिलिटेटेड हो, बट जो इट इज इन सच ए गुड पोजीशन, तो नेगेटिव कैसे होगा? Okay, sir. So I think this completes our horary, and next time we will start with the annual horoscope, जिसको हम वर्षफल बोलते हैं, कि जो एक साल के लिए हम प्रिडिक्शन देखते हैं कि, and those predictions are valid only for 1 year. So every year we make a annual horoscope and we try to make prediction for a year. तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टाइम जो है। Uncle, I will miss the next class, but I will follow up because Mother's Day है, तो उस दिन बच्चे organize कर रहे हैं। Oh, wonderful, wonderful. I will miss that. चलिए, any other question? सर, मेरा एक कॉमन क्वेश्चन था जी। वृश्चिक लग्न है और उसमें 5th हाउस में सैटर्न और डेबिलिटेड मरकरी है और 11th हाउस में मून और मार्स। तो अभी हम सीक्रेट फ्रेंड्स और फ्रेंड्स की बात कर रहे थे, तो इस कंडीशन में मैं क्या प्रेडिक्ट करूं? नहीं, आपने 2 प्लैनेट बता दिए, मुझे पूरा बताइए। एक डेट ऑफ बर्थ है आपके पास? डेट ऑफ बर्थ 22 अप्रैल 1967। एक मिनट, बताइए। 22 अप्रैल 1967। 57? 67। 87 और 57? 67 सर। 67? यस सर। टाइम? टाइम 8 बजे रात का। रात को।
एंड जगह जगह झांसी। ये है, यही है ना और उसको? नो सर, ये तो थोड़ा सा चेंज दिखा रहा है। उनके 5th हाउस में मरकरी और सैटर्न है। ये तो खुला लग्न चेंज हो रहा है ना। ये हमने 22 अप्रैल 1967 20 आवर्स और झांसी दिखाया है, और लग्न की डिग्री करीब 26 डिग्री 21 मिनट्स है। तो ये करीब करीब एंड में है। तो ये आपने जो हॉरोस्कोप बना रखा है वो कहीं उसका पंचांग नहीं होगा झांसी का, पंचांग में भी ऑफ सम अदर प्लेस, बट अगर कंप्यूटर से बनाया है तो फिर डिफरेंस नहीं आना चाहिए। नहीं इसमें तो 7 नंबर लगना। सर आप इसमें 8 बजे 10 बजे का, वृश्चिक लग्न करिए सर, इसका 10 बजे का टाइम कर दीजिए या 6 बजे। यू कैन सी अदर, नहीं इसमें अंकल वैसे कुछ मैंने कंप्यूटर हॉरोस्कोप्स में देखा है प्रोग्राम्स में कि अलग अलग लग्न दिखा देते हैं कभी कभी। Is that because they don't get the correct town then, is it? हाँ, maybe because the town is not correct actually. उसका longitude latitude या नहीं होगा, या कुछ सॉफ्टवेयर भी ठीक नहीं होते। बट जैसे इसमें दिख रहा है कि डेट ऑफ बर्थ हमने सही फिल किया है, झांसी है, तो बट यही है कि जैसे यहाँ पर देखिए आप एंड है बिल्कुल उस साइन का, 26 डिग्री से क्रॉस हो गया। तो अगर हमारे पास उस जगह का पंचांग नहीं है झांसी का, तो नेचुरली फिर हम किसी आसपास का पंचांग लेंगे, तो उससे अगर बनाएंगे। बट अगर कंप्यूटर से ही बना है तो ठीक होना चाहिए दोनों केसेस में। लेकिन मतलब मेरा कंसर्न ये था कि मतलब अगर वृश्चिक लग्न है, कंडीशन मतलब यही है। चलो इसको हम वृश्चिक लग्न बना लेते हैं इसका। 1 मिनट जी, जस्ट 1 मिनट। लीजिए वृश्चिक बन गया, मान लीजिए। हाँ सर, तो इसमें जो सैटर्न और मरकरी और मून और मार्स, ये फ्रेंड और सीक्रेट फ्रेंड में है, तो इसे वाली उसमें हमें किस तरीके का सपोर्ट मिलेगा? मतलब एक तो सैटर्न जो है वो मतलब मैलेफिक हो गया, मरकरी भी डेबिलिटेड हो गया। देखिए इस हाउस को देखिए पहले जी, 5th हाउस को। 5th हाउस का जो सैटर्न मरकरी है यहाँ पर एसोसिएशन, और मून और मार्स उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो दो आप कह सकते हो कि मैलेफिक प्लैनेट है, बट जुपिटर भी देख रहा है इस हाउस को, एंड जुपिटर इज एस्पेक्टिंग इट्स ओन साइन। और अगर हम इस हाउस के लॉर्ड की भी बात करेंगे तो लॉर्ड इज जुपिटर, व्हिच इज वेरी वेल प्लेस्ड। इट मींस द लॉर्ड ऑफ 5th इन द 9th हाउस, व्हिच इज वेरी वेरी स्ट्रांग पोजीशन ऑफ दिस लॉर्ड ऑफ वन ट्राइन इन अनदर ट्राइन, ठीक है। तो ये 5th हाउस आपका बहुत स्ट्रांग हो गया यहाँ पर। तो जहां तक ओपन फ्रेंड्स हैं वो ठीक है। अब आप इसकी बात कर रहे हैं कि इसकी क्या पोजीशन है यहाँ पर, तो इसको देखिए। इसमें भी अगर आप देखेंगे कि जो मरकरी है वो अपने हाउस को एस्पेक्ट कर रहा है, पहली चीज। सो इट मेक्स अ राजयोग कंसर्निंग दिस हाउस। और इसका जो लॉर्ड है वो वेल प्लेस्ड है, और जुपिटर का उसके ऊपर इन्फ्लुएंस है। तो हम कहेंगे कि 5th और जो ये 11th हाउस है दोनों ही अच्छे हैं, दोनों ही ठीक हैं। तो these are not bad houses, they are good houses. तो मतलब हम मतलब सैटर्न की जो एस्पेक्ट रहेगी मतलब उसे थोड़ा सा कम वेटेज देंगे। देखिए आपको नेट इफेक्ट देखना होता है कि नेट इन्फ्लुएंस पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ पर जो नेट इन्फ्लुएंस है वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर सैटर्न और मार्स का एस्पेक्ट नहीं होता फिर तो 100% पॉजिटिव था। अब यहाँ पर नेट इफेक्ट आप कह सकते हो 70% पॉजिटिव है, नॉट 100% बट एटलीस्ट 70-80% तो पॉजिटिव है ही है। ओके सर, हाँ ओके, थैंक यू सर। Then I think we meet next Sunday. Yes sir.
Thank you, uncle. Good night. Okay. Thank you, sir. Thank you, sir.